all of you. Good morning. Can we clapping? Good morning, Good sir. morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. morning. जोर से. Good Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Morning. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good Good morning. morning. Good Good morning. morning. Good और जोर से. बहुत सारे Good लोगों का morning. अभी भी वीडियो ऑफ है. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. morning. Morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. इसमें पावर नहीं आ रहा है. इसको मंडे व्यू बंद लगे. कर. Yes, yes. वाह अश्विन भाई वाह. Thank you so much. It's sharp 7. Welcome all of you, the English Club. Please check your name first and switch on your video. Everyone. Please. Runda, Sabaya, Rikin, Rohit, Naresh, Banderi, Mansi, Gajera. Please rename yourself. Chinisa Lakhani. Okay, so new week start. Okay. So today I am inviting Jayesh Golakia. Welcome, Jayesh. थैंक यू अजय भाई एंड वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग. इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का फिर से एक बार वीक की शुरुआत में स्वागत है और इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू किया जाए. सो लेट मी शेयर द पीपीटी फर्स्ट. यस, माय वॉइस इज क्लियर अजय? Yes. ओके. Yes, and PPT is visible. Yes, PPT also visible. Okay, so let's start with this welcome note. You should always follow this welcome note. अजय भाई को हर रोज आपको बोलना पड़ता है, इसका मतलब आप ये नोट फॉलो नहीं करते, तो आप सभी को रिक्वेस्ट है आपको ये वेलकम नोट फॉलो करनी है. इंटेंशन, राकेश सर हर रोज आपको पूछते हैं इंटेंशन टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम और हर इंग्लिश. That is English Club's intention, and along with that you should also keep in mind that why do you want to learn English. ये अगर ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया था वो एलिफेंट वाला, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सभी ने वो देखा होगा. उसमें वो मोटिव था कि इंटेंशन क्लियर होना क्यों जरूरी है. वो एलिफेंट वाली स्टोरी अगर आपने वो इंग्लिश का वीडियो था वो देखा होगा, तो यही से हम इसलिए हम बार बार आपको पूछते हैं कि आपका मतलब वाई क्या है, वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश. ओके, इसी के साथ आज का बर्थडे विश करेंगे हम अजय किसी एक पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट करो और इसी को हम बोलेंगे कि ये जानवी और अनंत को बर्थडे विश करें. Okay, 1 minute. Let you check. We give to opportunity Parag Sangani. Yes, Parag. Yes. Happy birthday, Janvi. And happy birthday, Anuj. Anand Suhagya, yes. So once again, I wish a happy birthday to Janvi and Anand. Wish you many happy returns of the day. जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना. आप जीवन में खूब आगे बढ़े और अपना पॉजिटिवली अपने कंट्री का और अपने फैमिली में कंट्रीब्यूट करे और नाम रोशन करे. ऐसी इंग्लिश क्लब की ओर से आपको शुभकामनाएं है. जानवी और अनंत, तो 1 मिनट के लिए इसको अनम्यूट कर दीजिए. Yes, Janvi. Yes, Janvi. Janvi Vatalia, right? Not Janvi जानवी Diora. दियोरा. Please raise hand. Janvi Diora. Janvi Diora is not there. ओके, अनंत होगा शायद. Anand also not there. Okay, no problem. So let's move ahead. So today's topic preposition. Yes, preposition क्या है, कौन बताएगा? डेफिनेशन हमने पढ़ा था. किसी को अनम्यूट करे अजय प्लीज. प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं, क्या प्रीपोजिशन क्या है? हमने प्रीपोजिशन स्टार्ट किया तब भी बताया था कि प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं.
बहुत छोटा वर्ड होता है या तो वर्ड का समूह होता है जिसको सेंटेंस में आने से सेंटेंस पूरा मीनिंगफुल हो जाता है. यस क्रिशा, Okay, आई हैव अनम्यूटेड 103. यू. Okay, let's first give chance to 103. Roll number Dhruvi. 103. Dhruvi, Yes, sir. what is Near. preposition? Near, above, over, It's on. it. Yes, yes. Hold on. That's all are the preposition, but I am asking the definition of preposition. I don't know, Do sir. you know? Okay, no problem. Let's ask someone else. Ajay. Okay, Keyur Dholaria. Yes, Kayur. જે કોઈ પણ સેન્ટેન્સમાં નામ કે સર્વનામની આગળ આવે અને બીજા કોઈ નામ કે સર્વનામની બેનો રિલેશન દેખાતો હોય, એમ કે સમય, સ્થળ કે દિશાને, એને પ્રિપોઝિશન કહે. परफेक्ट. सो जिसको अभी तक नहीं पता उनको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं. दो नाम के बीच का रिलेशन दिखाता है प्रीपोजिशन. दो नाम के बीच का कौन सा रिलेशन दिखाता है? या तो प्लेस मतलब स्थान का रिलेशन दिखाता है, या तो टाइम मतलब समय का रिलेशन दिखाता है, या तो डायरेक्शन मतलब के दिशा का रिलेशन दिखाता है. दो नाम के रिलेशन दिखाते हैं. अगर मैं बोलूं कि हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, इसमें प्लेस का अगर बोलूं कि हेलीकॉप्टर मेरे अपार्टमेंट के ऊपर से पास हो रहा है, तो अपार्टमेंट और हेलीकॉप्टर का रिलेशन क्या है? प्लेस का, ऊपर से पास हो रहा है. अब ऊपर निकाल दूं तो हेलीकॉप्टर अपार्टमेंट पास हो रहा है, कुछ मीनिंग बन रहा है? तो ये बहुत छोटा सा है, ऊपर से पास हो रहा है, बुक टेबल के ऊपर है. अब ऊपर निकाल दो तो बुक टेबल है, कुछ मीनिंग नहीं बनेगा. तो ये सब है प्रीपोजिशन. मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई गो टू स्कूल, तो ये इसमें टू है, वो प्रीपोजिशन है. तो मतलब ये सब दो नाम के बीच का रिलेशन कौन दिखाता है? प्रीपोजिशन दिखाता है. और रिलेशन मेनली तीन होते हैं, या तो वो प्लेस स्थान का रिलेशन होता है, या तो टाइम का रिलेशन होता है, या तो डायरेक्शन का रिलेशन होता है. तो अभी तक हमने जो देखा वो कौन सा था? प्लेस का रिलेशन था. प्लेस में हमने 6 प्रीपोजिशन देखे, ओवर, अबो, ऑन और बिलो, अंडर, और एक था बीनीथ या तो अंडरनीथ. So far we have learned 6 preposition of place. Today we are going to learn the preposition of time. So let's see. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. अभी ये प्रीपोजिशन टाइम है तो वो क्या रिलेशन दिखाता होगा? टाइम का रिलेशन दिखाता होगा. तो टाइम के, अब देखो प्रीपोजिशन का राकेश सर ने भी उस दिन बताया था कि बहुत सारा वास्ट टॉपिक है, बहुत इसका यूज होता है. तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ना, ये एट, इन, ऑन, वो प्लेस में भी यूज होगा. हमने ऑन तो ऑलरेडी प्लेस में देख लिया कि बुक टेबल के ऊपर है, ऐसे एक सरफेस के ऊपर ऐसी है, तो सरफेस को टच करके डायरेक्टली इनके ऊपर दूसरी सरफेस से कोई जुड़ा हुआ है या तो कोई चीज है, तो हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं. तो ये टाइम में भी प्रीपोजिशन यूज होता है और प्लेस में भी यूज होता है. अब आगे हम और एग्जांपल से थोड़ा देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा. देखो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. तो अभी ये घड़ी है, घड़ी क्या क्या दिखाती है? घड़ी टाइम दिखाती है. कौन सा टाइम दिखाती है? घड़ी मतलब आवर में टाइम दिखाती है, मिनट में टाइम दिखाती है, या तो सेकंड में टाइम दिखाती है. तो जब जब भी घड़ी की टाइम की बात आए तब ऑलवेज प्रीपोजिशन लगेगा एट. एट के साथ एट हमें यूज करना है. कोई भी टाइम आपको दिखाना है, 7 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, तो ऑलवेज इसके पहले प्रीपोजिशन एट लगेगा. प्रीपोजिशन एट के बिना टाइम आ ही नहीं सकता. क्लियर है आप सबको? तो ये टाइम का प्रीपोजिशन है. तो टाइम, अभी घड़ी का कोई भी टाइम दिखाओगे तो एट प्रीपोजिशन लगेगा. अच्छा, एक और बात यहाँ क्लियर करूं मैं, कि अगर मैं बोलूं कि मैं कल इसी टाइम पे कुछ करने वाला हूँ, तो दिस टाइम मतलब अभी सपोज कितना टाइम हुआ? 7 और 8 हुआ है, 7:08. तो कल 7:08 पे ही मैं कुछ करने वाला हूँ. तो अगर मैं बोलूं कि इसके लिए भी एट प्रीपोजिशन लगेगा. एट दिस टाइम टुमारो, यही टाइम पे कल. ये अभी जो टाइम है घड़ी में आप देखो 10:20 हुई है इस घड़ी में. तो अगर आपको आने वाले कल में अगर ऐसा बोलना कि यही समय पर मैं कुछ काम करने वाला हूँ, यही समय,
तो यही समय मतलब कौन सा समय हुआ, 10:10। तो इसमें भी टाइम का जिक्र हुआ, तो इसके पहले भी आपको एट लगाना है, तो आपको बोलना पड़ेगा एट दिस टाइम टुमारो, यही समय। तो एक एडिशनल ये आपको याद रखना है टाइम, और अगर आपको बोलना है एट दिस टाइम टुमारो मतलब आने वाले कल में यही टाइम पे, उसके आगे भी एट प्रीपोजिशन लगेगा। अब कैलेंडर है, कैलेंडर क्या क्या चीज दिखाती है हमको, सबसे पहले ईयर बताता है। कैलेंडर आप देखो सब, तो कैलेंडर से हमें क्या पता चलता है, ईयर पता चलता है कि कौन सा ईयर है। दूसरा क्या पता चलता है, मंथ पता चलता है कि कौन सा मंथ चल रहा है। तीसरा पता चलता है डे, मतलब मंडे है, संडे है, ट्यूसडे कौन सा डे है। और चौथी चीज पता चलती है डेट, कौन सी डेट है। कैलेंडर से 4 चीज हमें पता चलती है। पहले हमें घड़ी याद रखनी है, घड़ी का टाइम है, उसके लिए ऑलवेज हम प्रीपोजिशन एट यूज करेंगे। दूसरा हमें कैलेंडर याद रखना है, कैलेंडर से 4 चीज हमें पता चलती है। इसमें ऊपर की 2 चीजें ईयर और मंथ। तो अगर आपको कोई ईयर दिखाना है या तो कोई मंथ दिखाना है, तो इसके पहले ऑलवेज प्रीपोजिशन इन लगेगा। जैसे आप बोलो कि इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, तो 1947 मतलब इन 1947। हम आगे एग्जांपल देखेंगे, आपको और क्लियर होगा। पर 1947 आया तो ईयर है, तो इन 1947। अगर आप बोलो मैंने जून से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो मंथ आया जून मतलब, तो इन जून आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर माय एग्जामिनेशन इन जून। तो मंथ है या तो ईयर है, इसके पहले ऑलवेज कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, इन प्रीपोजिशन यूज होगा। और अगर कोई डेट है, सॉरी डे है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे कोई भी डे है और डेट है, तो इसके पहले ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। समझ क्लियर हो रहा है यहाँ सबको? ओके, एक चीज और कि यहाँ ईयर और मंथ के साथ अगर आपको दिखाना है इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून को, वो उसके आगे भी इन प्रीपोजिशन यूज होगा। बस आपको इतनी चीज ही याद रखनी है, तो आप आराम से सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। इसका और कोई रूल्स नहीं है। अगर घड़ी का कोई भी टाइम है तो इसके आगे एट लगेगा। ईयर, मंथ, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके आगे इन प्रीपोजिशन होगा। और कहीं डे है या डेट है, इसके आगे ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। इसमें यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। हम सेंटेंस ही डायरेक्ट देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है आई डेली गो टू स्कूल ब्लैंक 7 o'clock ब्लैंक द मॉर्निंग। तो अब कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? किसी एक को अजय अनम्यूट करें। और फर्स्ट वन में और सेकंड वन 2 ब्लैंक है। अभी कोई चैट में मत लिखना, पहले हम पूछ लेते फिर चैट में लिखना। यस, हु इज देयर? First 8 and second in. त्रुषा, ओके। आई डेली गो टू स्कूल, फिर 8. पूरा सेंटेंस पढ़िए। I daily go to school at 7 o'clock in the morning. परफेक्ट। देखो 7 o'clock टाइम आया, तो टाइम के साथ हमने बोला कौन सा आएगा, घड़ी का कोई भी टाइम है तो एट प्रीपोजिशन होगा। तो आई डेली गो टू स्कूल एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसमें इन प्रीपोजिशन यूज होगा। यस अजय, फटाफट अनम्यूट करते जाना है। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ब्लैंक 1947। देखो यहाँ साथ में टेंस भी आपको रिलेट करना। यहाँ के फर्स्ट वाला सेंटेंस था वो कौन सा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये सेकंड वाला है पास्ट है, गेट का सेकंड फॉर्म यूज कर दिया, गोट हो गया कि मिला था फ्रीडम। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ब्लैंक 1947। यस अजय, हु इज देयर? बल्लर, भव्या। यस भव्या, बल्लर। India got its freedom in one. यस, फिर से एक बार, फिर से। India got its freedom फ्रीडम, freedom फ्रीडम, फ्रीडम, in फ्रीडम, फ्रीडम। freedom यस, in फिर भव्या 1947। बोलो सब मेरे साथ बोलो, इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम
इन 1947, यहाँ इन क्यों आया? क्योंकि यहाँ साल है। हमने देखा कोई भी अगर साल हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसके पहले ऑलवेज क्या प्रीपोजिशन होगा? इन प्रीपोजिशन होगा। तो इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1947। अब आई विल मीट यू ब्लैंक ट्यूसडे। अब यहाँ डे है। यस, हु इज देयर? यस, महेंद्र पाटिल। महेंद्र, आप साथ में मैम चैट में भी लिखते जाना, आंसर मिल जाए फिर तो वहां से भी सब देख सके। यस महेंद्र। महेंद्र इज नॉट अनम्यूटेड, so we give Okay. पूर्वी, पूर्व धामेलिया। पूर्व, I will Yes. meet you on Tuesday. वेरी गुड। आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे, क्योंकि यहाँ डे है। डे और डेट उस दोनों के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? ऑन। तो आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे। यहाँ देखो सिंपल फ्यूचर टेंस का है। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल शैल यूज करते हैं, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। यस, देखो ये राकेश सर टीचेस यू ब्लैंक थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। यस करुणा। Rakesh sir teaches you. Rakesh sir teaches you in Thursday, Friday and Saturday. Okay, in यूज किया आपने। In नहीं, कहाँ on, यूज on. होता है? On, ओके, वेरी गुड। Sorry, ऑन भूल ही ऑन गए। आएगा, क्योंकि डे और डेट के साथ ऑलवेज कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑन On, लगेगा। यस, राम। ओके, लेट्स गिव चांस टू सम अनदर पार्टिसिपेंट। राम विल मीट यू ब्लैंक 7th July. Ram will Yes, meet Arvi. you blank 7th July. Yes, Arvi. Ram will meet me Ram, in okay. 7 July. ओके, इन कहाँ यूज होता है? आरवी, इन कहाँ यूज होता है? इन प्रीपोजिशन। मुझे पूरा अपडेट लगा अपनी है। यस, ऑन आएगा ना, क्योंकि डे और डेट के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। तो राम विल मीट यू ऑन 7th July, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस था। सलमान विल मीट कैटरीना ब्लैंक 7 o'clock ब्लैंक द मॉर्निंग टुमारो। सलमान विल मीट कैटरीना, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है। ब्लैंक 7 o'clock ब्लैंक द मॉर्निंग टुमारो। यस, हु इज देयर? ज्योत। 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 यस, Yes. ज्योत। Salman will meet Katrina at 7 o'clock in the morning tomorrow. परफेक्ट। से टाइम आया, टाइम से पहले ऑलवेज, घड़ी का टाइम आया, ऑलवेज कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? एट। और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के पहले कौन सा लगेगा? इन। तो सलमान विल मीट कैटरीना एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। इसका क्या मीनिंग होता है इस सेंटेंस का? ज्योत, ज्योत, आर यू देयर? ओके, लेट्स मूव अहेड, नो प्रॉब्लम। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी was born blank 1869. Yes, roll number who 12. is there? Aryan. Yes, Aryan. M.K. Gandhi was born on 1869. On 1869. Okay, on कहाँ यूज होगा? in month or year में in है। यस यस यस, मंथ का नाम है किसी का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, या तो Year किसी है। साल है तो ऑलवेज इन आएगा। तो मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न इन 1869। ओके, और हम देखते हैं ऐश्वर्या मजमूदार संग सॉन्ग ब्लैंक लास्ट संडे। એટલે હું ડે સન્ડે મંડે ટ્યુઝડે। अश्विन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, नेक्स्ट वन। ओम। यस, ओम। Om, please accept my call. A song on last Sunday. फिर से एक बार। सर पहला क्या है? क्या? ऐश्वर्या? ऐश्वर्या मंदर नहीं, आप ऐश्वर्या के
ऐश्वर्या के बाद क्या लिखा, फिर से एक बार पढ़िए। मंजूदार। मजमूदार, यस, ये पूरा नाम है ऐश्वर्या और इसकी सरनेम है मजमूदार, ऐश्वर्या मजमूदार। फिर क्या है, ऐश्वर्या पढ़िए। ऐश्वर्या मंजूदार song on last Sunday. परफेक्ट, ऐश्वर्या मजमूदार संग, ये देखो सिंपल पास्ट टेंस का है तो सिंग का हो गया संग। ऐश्वर्या मजमूदार संग सॉन्ग ऑन लास्ट संडे, मतलब लास्ट संडे में उसने गाना गाया था। लास्ट संडे डे आया तो डे के पीछे, डे के पहले ऑलवेज प्रीपोजिशन आएगा ऑन। यस, कौन पढ़ेगा और ये आंसर देगा इसका? यस अजय, हु अंश इज देयर? कामेलिया यस अंश, 185. यस अंश। The first Olympic game was held in 1924. Yes, the first Olympic game was held in 1924. 1924 में फर्स्ट ओलंपिक गेम हुई थी, मतलब खेली गई थी, आयोजन किया गया था, हेल्ड मतलब। ओके, 1924 है तो साल आया तो इसके पहले ऑलवेज कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? इन। 10th वन, यस, हु इज देयर? It's Versa. Babariya यस, Versa. वर्षा बेन बाबरिया, यस। My father is going to come in 3rd July. ओके, इन कहाँ कहाँ आएगा? Oh, sorry, sir. On 3rd July. Oh, my father is going to come on 3rd July, कि मेरा Right. पिताजी 3 जुलाई को आने वाले हैं अथवा आने को आ रहे हैं। अभी इसको आप सिंपल फ्यूचर में भी बना सकते हैं कि माय फादर विल कम, सिंपल फ्यूचर में कि माय फादर विल कम ऑन 3rd जुलाई, ऐसे भी हो सकता है। ये माय फादर इज गोइंग टू कम, राकेश सर ने जब सिंपल सॉरी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था कि कोई निश्चित क्रिया है कि जो होने वाली है, तो इसको आप बोल सकते हो कि 3 जुलाई को फादर आने वाला ही है, फिक्स एक्शन है, वो फिक्स क्रिया है कि आने वाले ही है, तो आप बोल सकते हो माय फादर इज गोइंग टू कम ऑन 3rd जुलाई। 3rd डेट है, डेट और डे इसके पहले हम ऑलवेज ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। By mistake, sir. यस, ओ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वो मिस्टेक क्लियर करने के लिए तो हम यहाँ आते हैं। ओके, 11, हु इज देयर? Vrunda. यस वृंदा, वृंदा। My friend is said I will see you at 7 o'clock. फिर से एक बार पढ़िए। My friend said I will see you at 7 o'clock. परफेक्ट, टाइम आया, घड़ी का टाइम ऑलवेज 8 लगेगा। आई विल सी यू एट 7 o'clock. ओके, नेक्स्ट वन। Okay, Ayush. यस Ayush आयुष। Chitroda. I have student started to every to prepare for my exam on exam, for my exam. ओके, फिर क्या आएगा ब्लैंक में? August. In अगस्त, इन क्यों आएगा? August है इसीलिए। ओके, वेरी गुड, अगस्त है इसलिए इन आएगा, क्योंकि मंथ का नाम है या तो साल है, इसके पहले ऑलवेज इन आएगा। तो आई हैव स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माय एग्जाम इन अगस्त, मैंने अगस्त में से स्टार्ट की हुई है। ओके, हु इज देयर? Niral. सॉरी, Niral Hello. Dhanani. निरल, यस निरल। The school will remain रिमेन मतलब रहेगी। closed on Sunday. वेरी गुड, ऑन, यहाँ डे है तो ऑलवेज ऑन आएगा। द स्कूल विल रिमेन क्लोज ऑन संडे। ओके, नेक्स्ट वन।
यस दर्शना सभाया I will be watching. I'll I will be be what? wa- I will be watching a movie at 5 o'clock tomorrow. परफेक्ट। और ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? एक सेंटेंस है कंटिन्यू फ्यूचर टेंस का। परफेक्ट। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का है कि कल 5 बजे मैं मूवी देख रही होगी। तो आई विल बी वॉचिंग अ मूवी एट 5 o'clock टुमारो। टाइम आया तो 5 o'clock टाइम है, घड़ी का टाइम के ऑलवेज एट प्रीपोजिशन होगा। अगर आपको बोलना है कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ तो आई गेट अप अर्ली एट 6 o'clock। 6 o'clock 6 टाइम आया घड़ी का, तो इसके पहले भी ऑलवेज एट प्रीपोजिशन यूज होगा। ओके नेक्स्ट, लेट्स मीट ब्लैंक ऑगस्ट। यस 2 to 4 सभाया Pransu. Yes, Pranshu, and I think Pranshu, your mother is with you. I don't know who is with you. Yes, Pranshu. Yes, yes, sir. She is my mother. प्रांशु, बहुत इको आ रहा है तो आपका आंसर सही से मिला नहीं मुझे। Okay, we give yes Urvashi. Let's meet on August. Let's meet on August. Okay, on कहाँ यूज होता है? Month and year. ओके, मंथ एंड ईयर में ऑन यूज होता है, और डे और डेट में क्या यूज होता है? In. वेरी गुड। और एट कहाँ यूज होता है? Time बताने. ओके, फिर से एक बार बताइए। मंथ और ईयर इसमें क्या यूज होता है? In. इन यूज होता है। तो यहाँ Okay, मंथ, let's meet in August. यस परफेक्ट। अब आप पकड़ लिया आपने। मंथ और ईयर में इन यूज होगा, ऑन नहीं यूज होगा। डेट और डे में ऑन यूज होगा। सो लेट्स मीट इन अगस्त। चलो हम अगस्त में मिलते हैं। ओके, सम मोर एग्जांपल ऑफ एट। मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्लाइड हमने आगे वाले लेक्चर में भी देखी थी। एक कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का है। आई विल बी वॉचिंग टीवी। तो देखो, एट 9 PM टुमारो, कल 9 बजे, कल शाम को 9 बजे मैं टीवी देख रहा होगा। तो कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस फ्यूचर, कल की बात, आने वाले कल की बात की है। तो कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस है, पर टाइम आया तो इसके पहले ऑलवेज प्रीपोजिशन एट लगा। अब इसका हमको नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट यूज हो जाएगा। आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM टुमारो। विल नॉट को हम वांट भी बोलते हैं, तो आई वांट बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM टुमारो। अगर हमें क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल आई बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM टुमारो, क्या मैं कल 9 बजे टीवी देख रहा होगा। और अगर इसको आपको WH क्वेश्चन से बनाना है तो व्हाट विल आई बी वॉचिंग एट 9 PM टुमारो, कल 9 बजे, कल शाम को 9 बजे टीवी में मैं क्या, व्हाट मतलब शू जोई रही हो, क्या देख रहा होगा। तो देखो, टाइम के पहले सबसे आगे एट प्रीपोजिशन है, तो ऑलवेज टाइम के पहले एट प्रीपोजिशन होगा। और साथ में आप ये कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस भी एक बार फिर से देख लीजिए कि विल नॉट के बाद वॉचिंग आईएनजी वाले क्रियापद के पहले ही बी आएगा। व्हाट विल आई बी वॉचिंग एट टीवी, देखो सभी में आईएनजी वाले क्रियापद से पहले ही बी है। तो ये भी आपको साथ में टेंस भी आप कोरिलेट करो और प्रीपोजिशन भी देखते जाओ, क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी चीज आपको जो जो सीखे वो कोरिलेट करती जानी है। और इन वाले देख लेते हैं। द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, बोला था आफ्टरनून हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, इसमें सभी में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? इन यूज होगा। तो द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में बेबी सो रही होगी अथवा बेबी सो रहा होगा। द बेबी विल नॉट बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, ये नेगेटिव हो गया। द बेबी वॉन्ट बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून एंड विल द बेबी बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, क्या आफ्टरनून में बेबी सो रहा होगा। और व्हाट विल बी बेबी बी डूइंग इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में बेबी क्या कर रहा होगा। तो ये कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस है और साथ में आफ्टरनून है, सभी के पहले प्रीपोजिशन इन यूज हुआ है। तो ये हो गया प्रीपोजिशन इन, एट, ये हो गया प्रीपोजिशन एट, इन एंड ऑन, और टाइम के साथ था ये प्रीपोजिशन सब। हमने प्रीपोजिशन जो देखा वो क्या था? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के पहले था। अब यही प्रीपोजिशन हम प्लेस यानी कि स्थान के पहले भी यूज कर सकते हैं, तो वो हम अब देखेंगे। लेट मी चेक टाइम फर्स्ट। ओके,
सो ऑन तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं ऑन प्लेस के संदर्भ में कि ऐसी कोई सरफेस है, इसके बुक टेबल के ऊपर बुक है, तो प्लेस का रिलेशन हुआ। तो इसके पहले ऑलवेज क्या आएगा, प्रीपोजिशन ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। आप सबसे पहले ये समझ रहे हो टाइम और सब टाइम में भी यूज हो रहा है प्रीपोजिशन और प्लेस में भी यूज हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है, एक प्रीपोजिशन का यूज बहुत सारी जगह पे हो सकता है। तो आपको याद रखना है, हमने एट, इन, ऑन वो सबसे पहले टाइम के संदर्भ में देखा कि टाइम और नाम का क्या रिलेशन है, वो देखा हमने। अभी टाइम नहीं, अभी नाम दो है, उसका स्थान के साथ क्या रिलेशन है वो दिखाएंगे हम। और एट, इन और ऑन से हम एग्जांपल देखते, पहले मैं बता दूं कहाँ यूज होगा, फिर हम एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इन बताऊंगा, इन कहाँ यूज होगा। अगर हम 4 कमरे के अंदर है, कहीं पे भी 4 कमरे के अंदर है, तो ऑलवेज इन प्रीपोजिशन यूज होगा। जैसे कि मैं रूम में बैठा हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो ऑफिस में 4 दीवार होगी, 4 दीवार के अंदर है तो इन यूज होगा। मैं क्लास में बैठा हूँ, क्लास में भी 4 दीवार होगी, तो 4 दीवार के बीच में आप अगर बैठे हो तो वहां इन यूज होगा। और दूसरा इन यूज होगा कोई आप सिटी में हो, जैसे मैं सूरत में रहता हूँ तो आई लिव इन सूरत, लिव इन सूरत। कोई बड़ा सा सिटी में हो तो वहां इन यूज होगा। इन और एट में थोड़ा सा डिफरेंस है, एट पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ प्लेस दिखाने के लिए यूज होगा। मानो कि मैं सूरत में रहता हूँ पर मैं वराछा में रहता हूँ, तो मैं एट वराछा यूज करूंगा, आई लिव एट वराछा इन सूरत। तो पर्टिकुलरली कोई पॉइंट आपको दिखाना है, कोई लोकेशन दिखाना है, तो वहां आप यूज करोगे एट लोकेशन के लिए। पूरा सिटी है इसके लिए यूज होगा इन। और अगर 4 कमरे के अंदर बैठे हो तो यूज होगा इन। और ऑन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक सरफेस के ऊपर दूसरी ऐसी कोई है, वहां पे हम यूज करेंगे ऑन। क्लियर है यहाँ सबको? हम एग्जांपल देखते हैं, इससे और आपको क्लियर होगा। आई एम ब्लैंक माई होम। यस अजय, लेट्स अनम्यूट समवन। आई एम, आप म्यूट कर दीजिए सब अपने आप को, किसी का वॉइस आ रहा है। 1 minute, I mute all first. ओके Yes, yes, first yes unmute yes you. yes 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 let's unmute someone. Yes, I Payal. am, Payal Naria. yes Payal, I am at my home. I am at my home। अगर आप घर में अंदर है, घर में है, तो 4 दीवार के बीच में होगे या बाहर होगे? बाहर भी हो सकते हैं। तो घर में नहीं बोल सकते। I am in my home. यस इन ही आएगा, होम। होम, आई एम इन माई होम, मैं मेरे घर में हूँ। Okay. आपको कॉन्सेप्ट लेना है, यहाँ पॉइंट लोकेशन नहीं दिखा रहा है होम में। होम बताने के लिए हम बोल रहे हैं कि मैं घर में हूँ, तो आई एम इन माई होम आएगा। क्लियर है सबको? पायल बेन ने पॉइंट ऑफ लोकेशन ले लिया, लोकेशन की बात नहीं। होम मतलब आप 4 दीवार के बीच में हो, अगर 4 दीवार के बीच में है तो ऑलवेज इन ही आएगा, आई एम इन माई होम आएगा। Okay. यस नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा, 1 मिनट। यस द बुक इज ब्लैंक द टेबल। टेबल और बुक का रिलेशन स्थान का है। यस Yes, हु इज Devchan bhai. देयर? यस देवचंद भाई। The book is on the table. परफेक्ट, द बुक इज ऑन द टेबल। अगर इसके टेबल के ऊपर है, टच होके, तो द बुक इज ऑन द टेबल। यस नेक्स्ट। Sanjay Okay. is having high food in देवचंद भाई प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस लेट्स गिव चांस टू सम अदर पार्टिसिपेंट्स। अजय। Yes, Vrunda. यस वृंदा। Sanjay is having his food in the office. परफेक्ट, संजय इज हैविंग हिज फूड, मतलब संजय अपना खाना खा रहा है। इज हैविंग हिज फूड, संजय खाना खा रहा है। कहाँ पे? ऑफिस। तो ऑफिस है तो ऑफिस के अंदर होगा ना, मतलब अंदर 4 दीवार के बीच में है, तो इन दी ऑफिस। संजय इज हैविंग हिज फूड इन दी ऑफिस। परफेक्ट नेक्स्ट। यस लेट्स अनम्यूट समवन एल्स। Jatin Solanki.
Yes, Jatin. Yes. I live in Yogi Chowk at Surat Yes. with my beautiful family. Very good. अब योगी चौक क्या है? Place, प्लेस है. ओके. और सूरत क्या है? city. ओके. तो प्लेस के पहले, प्लेस यानी कि लोकेशन के पहले क्या प्रीपोजिशन Sorry, कौन sir. सा I यूज live होगा? at. I live at. ओके. फिर से बोलिए एक बार. I live at Yogi Chowk in Surat with my beautiful family. Yes, now it is correct. I live at Yogi Chowk in Surat with my beautiful family. समझ Yes. रहे हो आप सब क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा मामूली है कि अगर आप किसी को लोकेशन दिखाना है तो ऑलवेज एट होगा लोकेशन के हिसाब से. अगर वो उसी सिटी में हो ऐसा दिखाने के लिए इन यूज होगा. नेक्स्ट वन. ओके, फिफ्थ हम लास्ट में देखते हैं. सिक्स्थ, हु विल मेक दिस सेंटेंस? यस अजय, लेट्स अनम्यूट समवन एल्स. Yes, Niral. यस नीरल. 1 minute, he didn't unmute. Yes, Kamlesh Hirapra. यस Okay, कमलेश. कमलेश, आर यू देयर? I'll meet you blank. इसके बाद है the tea post. Do you know what is? Okay, अब tea post क्या है वो पता है आपको? नहीं पता, इसलिए मैं ओके, यस. टी पोस्ट है एक चाय की टपरी का नाम. मतलब वो फेमस ब्रांड है चाय की दुकान का. वहाँ चाय मिलती है. तो मैं आपको बोलूं कि हम वो टी पोस्ट पे मिलते हैं. ऑन द टी पोस्ट. ऑन द टी पोस्ट. अब टी ऑन तो ऊपर हो गया. आई विल मीट यू इन द टी पोस्ट. इन द टी पोस्ट के अंदर ऐसा भी नहीं आएगा. एट. अब एट ही बचा है और कुछ बचा ही नहीं है. ओके, नो प्रॉब्लम. लेट्स क्रिएट वंस अगेन. एट क्यों आएगा? हमने पहले बोला एट जो पर्टिकुलर लोकेशन है. तो या मैं बोलता हूँ हम चलो टी पोस्ट पे मिलते हैं, तो मैंने लोकेशन बताया ना आपको कि हम टी पोस्ट पे मिलते हैं, हम कोई चाय की टपरी पे मिलते हैं, हम फलाना फलाना की दुकान पे मिलते हैं. तो ये लोकेशन हो गया. और लोकेशन के पहले ऑलवेज एट यूज होगा. तो आई विल मीट यू एट द टी पोस्ट. मैं आपको टी पोस्ट पे मिलूंगा. एट आएगा यहाँ क्योंकि लोकेशन के पहले ऑलवेज एट प्रीपोजिशन यूज होगा. आई विल मीट यू एट टी पोस्ट. ओके, लेट्स अनम्यूट समवन एल्स. अजय. ये Yes, नेहल Rajnikant. पटेल उबासी ले रहे हैं, यहाँ देख सकता हूँ मैं. यस रजनीकांत. I am going to meet you in August in Rajkot. परफेक्ट. आई एम गोइंग टू मीट यू अगस्त. देखो यहाँ अगस्त है वो टाइम वाला आ गया फिर. पर अगस्त है तो इसके अगस्त मतलब मंथ और ईयर, मंथ और साल के लिए इन यूज होगा और राजकोट सिटी के लिए भी इन यूज होगा. तो आई एम गोइंग टू मीट यू इन अगस्त इन राजकोट में. राजकोट में अगस्त में आपको मिलने जा रहा हूँ. इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस में भी ये बना सकते हैं कि आई विल मीट यू, मैं आपको मिलूंगा. ओके, एट्थ वन. Yes, Arvi. यस आरवी. I आरवी. am I am. at the Ubrat Bridge. यस, आई एम एट दी उबराट बीच. मैं उबराट बीच पे हूँ. अगर आप उबराट पर हो और आपको किसी का फोन आया आप कहाँ पर हो तो क्या बोलोगे? मैं उबराट बीच पे हूँ. आई एम एट उबराट बीच. तो उबराट बीच क्या बताया आपने? लोकेशन बताया. हम अब आप देखो, आप सोशल मीडिया पे भी आप डालते हो एट सब, मतलब एट उबराट, एट सुवाली बीच, एट गाय पगला, एट सेंट्रल मॉल, एट वीआर मॉल लिखते हम. अब आपको पता चला क्यों मैं लिखते हैं? क्योंकि ऑलवेज लोकेशन से पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? एट यूज होता है. इसीलिए हम एट उबराट, एट सुवाली, एट सेंट्रल मॉल, एट वीआर मॉल ऐसे यूज करते हैं. सोशल मीडिया पे काफी सारे लोग लिखते हो गए ऐड करके, और ऐड का साइन भी कोई दिखाते हैं, वो @ वाला साइन. तो इसीलिए हम ऐट यूज करके कोई भी लोकेशन दिखाते हैं. तो आई एम एट उबराट बीच. ओके, अब फिफ्थ वन देख लेते हैं. यस अजय, लेट्स अनम्यूट समवन एल्स. Yes, Taruna. यस तरुणा बेन. Yes, I read यस the तरुणा book. बेन.
Okay. I read the book in the library. Read. Okay. In the library. Okay. In the school. ओके सो अब आप देखते हैं हम अब लाइब्रेरी में स्कूल होगी या स्कूल में नहीं। लाइब्रेरी होगी स्कूल में लाइब्रेरी स्कूल में। होगी ना एवरीवन सब देखिए यहाँ कैसे ये सेंटेंस होगा स्कूल में लाइब्रेरी होगी तो लाइब्रेरी क्या हमने दिखाया लोकेशन बताया ना लाइब्रेरी तो Eight house. यस आई रीड द बुक एट द लाइब्रेरी इन द In स्कूल the स्कूल के अंदर लाइब्रेरी में मैं बुक पढ़ता हूँ तो एट आएगा क्योंकि अब लोकेशन है लाइब्रेरी वो लोकेशन हमने दिखाया है ओके लेट्स लर्न सम मोर एग्जांपल ओके अजय लेट्स अनम्यूट समवन एल्स Yes, it's 7:39. 7:39 ओके सो ये एग्जांपल आप सबको होमवर्क के लिए होगा लास्ट है शी इज सिटिंग अब कार है तो इन द कार होगा इन द कार तो ये 9 से ले 10 से लेके जितना भी सेंटेंस है वो सब आपको होमवर्क में फॉर्म करने हैं इसका और सम मोर एग्जांपल है स्लाइड आगे के लेक्चर में हमने देखा वही स्लाइड है ये सब एग्जांपल में आप देखोगे कि प्रीपोजिशन कैसे यूज होता है सो आज का होमवर्क देख लेते हैं आई थिंक मुझे लगता है सबको ये प्रीपोजिशन क्लियर हो गया होगा राइट डाउन 10 सेंटेंसेस इन टोटल यूजिंग एट इन एंड ऑन प्रीपोजिशन मतलब टोटल आपको 10 सेंटेंस लिखना है जिसमें एट इन एंड ऑन प्रीपोजिशन का यूज हो समझ रहे हो आप सब और आपको ऐसे सेंटेंस लिखने हैं जो आप डेली में करते हो आपको सिर्फ एग्जांपल लिखने के लिए कोई सेंटेंस नहीं लिख देना है जैसे कि आप किसी ने बोला कि हम 13 तारीख को हम मिलेंगे तो वी विल मीट यू ऑन 13 वी विल मीट यू तारीख है डेट है तो डेट के लिए कौन सा यूज होगा ऑन तो वी विल मीट यू ऑन 13 जुलाई जून सो आपका कुछ डेली लाइफ का जो सेंटेंस है ना वो आपको लिखना है ऐसे एग्जांपल के लिए कुछ प्रीपोजिशन यूज करके कुछ भी सेंटेंस नहीं लिख देना है इससे आपका और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि डेली लाइफ में मुझे जब इंग्लिश बोलना है तो मैं कैसे बोल सकूं कैसे लिख सकूं तो ये प्रीपोजिशन का यूज करके 10 सेंटेंस लिखने और कॉल योर फ्रेंड एंड टेल देम इन इंग्लिश व्हाट डिड यू लर्न टुडे आज आप क्या पढ़े वो इंग्लिश में आपके फ्रेंड को बताना है ये आपका होमवर्क हो गया और लेट्स सी डू यू नो कि आप जानते हो रशिया हैज 11 टाइम जोन्स रशिया में टोटल 11 टाइम जोन्स है हमारे इंडिया में एक ही टाइम जोन है तो मतलब हम साउथ में है नॉर्थ में है ईस्ट में है वेस्ट में सभी जगह पे एक ही टाइम है अगर अभी 7:40 यहाँ हुआ है तो अगर दिल्ली में या गुड़गांव में साउथ में कहीं पे भी जाओ 7:40 का ही टाइम है लेकिन रशिया में टोटल 11 टाइम जोन है तो रशिया में ही आप अगर कौन सी प्लेस पर हो वहां का टाइम अलग होगा टोटल 11 टाइम जोन है रशिया में इतना बड़ा रशिया है ओके सो व्हाट डिड यू लर्न टुडे एंड फीडबैक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज यू कैन आस्क नाउ और आपका कुछ फीडबैक Yes, है तो Raj भी आप दे Lakhani. सकते हैं यस राज